लाइव चल रहा है ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. Hope your preparation is going fine and you people are planning your preparation properly. है ना, आप प्रिपरेशन को प्लान कर रहे हैं और चीज़ें आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं प्रिपरेशन के अंदर कि मुझे क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना. So this is the next lecture in our mentoring program. So this is about time management plan. So we have seen the pattern of examination and उस पैटर्न के अंदर हमने देखा कि आउट ऑफ दैट पैटर्न आई हैव लिस्टेड डाउन सर्टन थिंग्स विच यू नीड टू प्रिपेयर. टारगेट क्या हैं आपके, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड ना. तो आपको एक तो जनरल स्टडीज़ तैयार करना है ना. यू हैव टू प्रिपेयर जनरल स्टडीज़ बोथ फ्रॉम प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. जनरल स्टडीज़ आपको तैयार करना है प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. और देन आपको सी सेट तैयार करना है ओनली फ्रॉम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि सी सेट सिर्फ प्रीलिम में आता है. एंड देन एक ऑप्शनल तैयार करना है आपको ओनली फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑप्शनल इज देयर ओनली इन मेंस. एंड ऐसे तैयार करना अगेन इट कम्स ओनली इन मेंस. एंड इंटरव्यू तैयार करना इट ऑल्सो कम्स इन मेंस. सो दीज आर द होल सब्जेक्ट मैटर विच यू हैव टू प्रिपेयर इन सिविल सर्विसेज. अब सारी जो आपकी एफर्ट है दैट हैज़ टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रॉपरली प्लानिंग your preparation in such a way that you are able to achieve these targets as per the requirements of the examination, isn't it? As per requirements of the time compulsion which you will face later on, right? So this is must. Because there are certain basic things which cannot be overlooked, है ना? And if you somehow mistakenly happen to overlook those facts, so ultimately you have to face challenges in future. So either we understand today what are the compulsions in our preparation, or we later on then face those challenges and then we somehow feel bad ki I should have prepared in that way. So my endeavor here is to make you aware about those compulsions which you may face later on, and for that those compulsion planning today is required. आज planning क्या required है वो आपको देखना है ना. देखो जैसे वी हैव सीन द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन. आई विल रिविजिट द शेड्यूल. योर प्रीलिम इज हेल्ड समवेयर इन जून. आई हैव टेकन अ हाइपोथेटिकल डेट ऑफ 7 जून. हाइपोथेटिकल डेट, although it will be either first Sunday of June or second Sunday of June, whatever it is. Generally paper is happening in June. Now the mains will be held in September. Again I have taken a hypothetical date towards September end, है ना. तो I have calculated that you get only 3.5 months for your mains preparation. Well, the time gap between pre-exam and mains exam is 3.5 months. And hypothetically again if we assume that result is going to come on 7th July suppose, then you get 1 month between pre-exam and pre-result and 2.5 months between pre-result and mains exam. Right. Now in all as such you have 3.5 months. Now it is practically 3.5 months, but see theoretically it is 3.5 months, but practically if you see then see immediately आपने प्री एग्जाम दिया तो अगले दिन तो पढ़ने लग नहीं जाओगे ना. तो एटलीस्ट 3-4-5 days आर वेस्टेड. अब मोमेंटो बनने में टाइम लग जाता है ना. तब जब रिजल्ट आता है उस वक्त थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना. देन व्हेन यू अपीयर इन मेंस एग्जाम तो उससे पहले आप बिल्कुल कुछ नया पढ़ना छोड़ देते हो एंड यू आर जस्ट ऑन टू रिविजन फॉर जनरल स्टडीज, बिकॉज वी हैव सीन दैट देयर इज नो टाइम गैप between GS papers in the mains examination. So effectively if there are 3.5 months you will get 2.5 to 3 months time total. आपको 2.5 से 3 महीने का टाइम ही मिल रहा है. एंड डेफिनेटली इस 2.5 से 3 महीने में मेंस की पूरी तैयारी नहीं हो सकती, है ना. अब ये मेंस आप सितंबर में दे रहे हो और आपका रिजल्ट आ रहा है दिसंबर या जनवरी में मेंस का. एंड इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू विल बी हेल्ड विद इन 30 days. जनरली 30 दिन का टाइम वो देते हैं. 30 दिन के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं. बट एज सच इंटरव्यूज आर स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो यू मे गेट 1 month, you may get 1.5 months, 2 months time. But in any way you can't take risk. So your this time between mains exam and mains result, this should be devoted towards preparing for the interview. Because interview preparation according to us it takes around 90 days time.
90 दिन का टाइम एक अच्छे इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाता है, जिसमें आप 180 प्लस टारगेट करने के क्लेमेंट बन जाते हो, है ना, क्लेमेंट बन जाते हो। इंटरव्यू आपका मार्च और अप्रैल में इंटरव्यूज हो जाएंगे, जल्दी भी हो सकते हैं, तो डिपेंड्स करता है कि एवरी ईयर की स्ट्रेटजी क्या है, बट अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन मेंस एग्जाम एंड मेंस रिजल्ट यू गेट अराउंड 80 to 90 डेज, है ना, और एक महीने बाद ही इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। 20 to 30 डेज टाइम हम एक लेके चलते हैं, और उसके बाद देन ऑन विच डेट योर इंटरव्यू कम्स इट डिपेंड्स अपॉन योर लक, ठीक है ना। और रिजल्ट ऑफ इंटरव्यू इज गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ मई, फाइनल रिजल्ट आपका मई में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, सो ठीक है ना। एंड देन नेक्स्ट प्लीज अगेन दिस इज नोन एज विशियस साइकिल ऑफ यूपीएससी। मैं इसको चक्रव्यूह बोलता हूं, चक्रव्यूह, यूपीएससी चक्रव्यूह। एंड यू विल बी amazed to know that we associated the name of Abhimanyu to this Chakravyuh, that if you enter into this Chakravyuh with no preparation, as Abhimanyu entered somehow, he was not knowing the intricacies of this Chakravyuh, तो उसमें फंस के रह जाता है वो। So the target of Abhimanyu as an concept, as an institution, was to prevent this entering into this Chakravyuh without preparation। तो हम ये मानते थे कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं वो एक अभिमन्युस की तरह है कि अगर वो चक्रव्यूह में बिना प्रिपरेशन के एंटर कर गए तो गोल गोल घूमते रहते हैं। और आपने देखा होगा कई बच्चे फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, वो चलता रहता है प्रोसेस उनका। वो इसलिए चलता रहता है कहीं ना कहीं कि वो जब एंट्री करनी है इस चक्रव्यूह में वो पूरी प्रिपरेशन के साथ नहीं करते। तो हमें अभिमन्यु नहीं बनना है, हमें अभिमन्यु बनना है, उस जैसा शूरवीर बनना है, बट एट द सेम टाइम हमें चक्रव्यूह में एंटर करना है विद फुल प्रिपरेशन, ठीक है। सो अल्टीमेटली इस चक्रव्यूह से आपको बचाने की ये कोशिश है। देखिए नेक्स्ट, अब इसमें देखिए स्ट्रेटजी कंपल्शंस क्या है हमारी। अब हमें कुछ लेसन्स हैं हमारे लिए जो हमें बिल्कुल याद रखने हैं कि जो रीजनेबल प्रिपरेशन ऑफ मेंस शुड बी डन बिफोर द प्रीलिम। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि आपकी रीजनेबल प्रिपरेशन मेंस की होनी चाहिए। आप एज यू एंटर इनटू दी एज यू गिव द प्रीलिम एग्जाम, ठीक है ना। इसमें क्या है मेंस की प्रिपरेशन, जैसे जो मेजर सेक्शंस हैं, इकोनॉमी आप लिख लो साथ में, ये इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस, सोशल इश्यूज, ये जो आपके सेक्शंस हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सेक्शन सारे आपके प्री से पहले तैयार होने चाहिए, मस्ट है। इसमें से देखिए ये सेक्शन जो हैं आपके, दी सेक्शंस दिस शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बोथ प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज पर सिलेबस ऑफ यूपीएससी। और ये 3 सेक्शन अगर आपके मेंस के भी तैयार हैं तब भी हम कहेंगे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है एंड यू आर फुली एलिजिबल फॉर अपियरिंग इन द प्रीलिम एग्जाम। यू आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रीलिम एग्जाम। तो ये 3 सेक्शन भी आपने प्रैक्टिकली तैयार कर लिया। अब इसके अलावा बचता क्या है हमारा, एक हमारा आईआर बचता है, एक हमारी सिक्योरिटी बचती है, ठीक है ना, एक हमारा बचता है एथिक्स सेक्शन, एथिक्स सेक्शन। ये 3 मेजर सेक्शन आपके बच गए, माइनर सेक्शन है नॉट मेजर। ये सेक्शन आपके प्री के बाद भी हो सकते हैं अगर आप 2021 में दे रहे हो, रिमेंबर। मतलब अगर आप 2022 में दे रहे हो या 23 में दे रहे हो फिर नहीं, फिर तो सारा ही करना है, वो मैं आगे प्लानिंग बताऊंगा। लेकिन एक 2021 वालों के लिए ये एक छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन है कि अगर आप ये 3 मेजर सेक्शन, जो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, गवर्नेंस एंड सोशल इशूज कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, और आईआर, सिक्योरिटी एंड एथिक्स यू कैन प्रिपेयर आफ्टर द प्री, उतना छोड़ सकते हो आप कि जो आपका ये रिजल्ट का जो टाइम है ना, ये 1 महीना है, ये वाला 1 महीना, इसके अंदर आप ये तीनों सेक्शन तैयार कर सकते हो, ये वाले तीनों सेक्शन, ठीक है ना। तो फेयर इनफ, चल जाएगा काम। और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन ये है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन शुड बी डन आफ्टर द मेंस एग्जाम। ये सिंपल है समझना, जैसे मैंने आपको बता दिया कि 90 दिन आपको 80 से 90 दिन मिल रहे हैं आफ्टर द मेंस एग्जाम, तो वो टाइम यूटिलाइज करना है आपने फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू प्लस इंप्रूवमेंट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट इफ रिक्वायर्ड। तो इसलिए बी वेरी क्लियर इन माई हेड कि यार ये कंपल्शन हैं, ये फैक्ट्स हैं सारे, इससे आप बच नहीं सकते। आज नहीं कल दीज फैक्ट्स आर गोइंग टू कम बिफोर यू
एंड अगेन यू हैव टू, देन यू विल थिंक। तो आप ये गलती कभी भी नहीं करोगे। कोई आपको तैयारी में डिफिकल्टी आती है, प्लानिंग में डिफिकल्टी आती है, आई हैव गिवन द नंबर, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आपने मेरे को मैसेज करना है कि ये दिक्कत आ रही है, या इस कमेंट पे पोस्ट कर देना कि ये दिक्कत आ रही है सर। ठीक है जी। तो अब थर्ड इसके अंदर आता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपका, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मेन्स प्रिपरेशन। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑल्सो शुड बी प्रिपेयर्ड रीजनेबली। मतलब हम कहते हैं कि 60 to 70% अगर सिलेबस आपका ऑप्शनल का प्री एग्जाम से पहले कंप्लीट है, देन यू आर सेफ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अदरवाइज देखिए इफेक्टिवली यू आर गेटिंग 3 months। 3 months में आप ऑप्शनल तो तैयार नहीं कर सकते ना, बिकॉज दो 3 months आर मेंट फॉर रिविजन, इम्प्रूवमेंट, करंट कवरेज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, गिविंग टेस्ट। तो उसमें क्या है कि मिनिमम कवरेज के लिए कंपैरेटिवली टाइम कम मिलेगा आपको, इफ़ यू हैव टू गिव अ वेरी गुड मेंस अटेम्प्ट। अगर हमने लास्ट मोमेंट तक तैयारी करते रहना है एंड वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग मेंस आंसर्स, वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो आपको भी लगेगा कि यार ये मेरी तैयारी में कमी है कोई, है ना। पर्टिकुलरली हम कहते हैं कि जो प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, जब रिजल्ट के आगे तो आपका काम रिविजन, याद करना, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, एनहांसमेंट, मेंस आंसर राइटिंग पे ही रहना चाहिए और करंट अफेयर्स पे। प्री रिजल्ट के बाद 2.5 महीने जो हैं उसमें हम जनरली कहते हैं कुछ भी ना नया पढ़ो। तो प्री रिजल्ट से पहले 1 महीना मिल रहा है आपको, प्री एग्जाम के बाद वो 1 महीने के अंदर आपका जो ऑप्शनल का जितना बचा हुआ है ये 30%, और जो मेंस के सेक्शन कुछ बचे हुए हैं ये सारे आपने कवर कर देने हैं। अगर बचे हुए हैं तो वो कवर कर दिए 1 महीने में। 2.5 महीने जो आपके पास हैं प्योरली वो प्रॉपर रिवीजन के, याद करने के, इंप्रूवमेंट के और मेंस आंसर राइटिंग के लिए, विच इज मोर देन इनफ। ठीक है ना। अब आप देखिए आगे। अब नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि जो लोग 2021 में दे रहे हैं उनके लिए क्या अब हमें प्लानिंग सजेस्ट करनी है। अब 2021 में अगर आप दे रहे हो तो यू हैव प्रेजेंटली 7 months लेफ्ट। 7 महीने आपके पास बचे हुए हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 7 months आर लेफ्ट। सो यू हैव टू असेस योर प्रिपरेशन नाउ एट दिस मोमेंट कि मेरा कितना कवर हो चुका है एंड इन विच डायरेक्शन आई हैव टू गो। मेरा कितना कवर हो चुका है और आगे मैंने कितना कवर करना है, इजंट इट। तो इसमें बेसिक सी जो पैरामीटर्स हैं वो ये हैं कि इन केस वट एवर योर सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में बी, बट लेकिन जो ये जीएस प्रीलिम का सिलेबस है में इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये जो प्रीलिम और मेंस का कॉमन पार्ट है ये, दिस शुड बी कवर्ड बिफोर जनवरी एंड। आपका जनवरी एंड से पहले सारा ये कवर हो जाना चाहिए अच्छे से। अब नाउ यू हैव टू असेस योर प्रिपरेशन नाउ कि मेरा अभी तक कितना कवर हो गया। अगर इफ आई एम टारगेटिंग 21, देन यू हैव टू मेक असेसमेंट शीट ऑफ योरसेल्फ कि आई हैव कवर्ड अप टिल नाउ दिस मच, और मुझे इतना और करना है। क्या वो जनवरी एंड तक खत्म हो जाएगा? देन इन द जनवरी फर्स्ट वीक इटसेल्फ द मेंस, द प्रीलिम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज शुड बी गिवन, कि आप अपना जनवरी से ही टेस्ट सीरीज शुरू कर दोगे, है ना। 5 महीने की रिगरस टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड अगर आप सोचते हो कि आपका प्री क्लियर होगा। ये तो करना ही करना आपको, बिकॉज व्हेन यू गिव टेस्ट सीरीज देन यू हैपन टू रिवाइज योर होल करिकुलम। आपको अपने गैप्स पता लगते हैं, देन यू अगेन रीड द सब्जेक्ट मैटर टू फिल योर गैप्स। दैट इज द पर्पज ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट दो, नंबर देखो कहाँ गैप हैं, इंप्रूव करो, फिर टेस्ट दो, फिर नंबर देखो, फिर गैप इंप्रूव करो, आगे चलो। अपनी गलतियां देखो कि वेयर आई हैव कमिटेड मिस्टेक, वेदर देयर वाज अ प्रॉब्लम इन माय कंटेंट कवरेज और देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय व्हाट यू से, क्या कहते हैं उसको, अपना अटेम्प्ट में प्रॉब्लम है मेरे। कंटेंट और अटेम्प्ट दोनों एस्पेक्ट देख के चलते जाओ, टेस्ट देते जाओ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके पास अभी भी 2.5-3 महीने हैं। अगर आपका 1 सेक्शन बचा है, 2 सेक्शन बचा है, 3 सेक्शन बचा है, अकॉर्डिंगली आपने वो सेक्शंस कवर करने हैं, अकॉर्डिंगली वो सेक्शंस आपने कवर करने हैं, ठीक है ना। तो ये एक फ्रॉम जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू प्रिस्क्रिप्शन है। एंड रिगार्डिंग ऑप्शनल्स, योर 60 to 70% ऑफ ऑप्शनल शुड बी कवर्ड बाय डिसंबर एंड। अगर आप 21 में दे रहे हो तो 2021 में अगर आप दे रहे हो तो दिसंबर 31 तक आपका 60 to 70% ऑप्शनल तैयार होना चाहिए। मतलब आप लगा लीजिए कि अभी आप 3 to 4 आवर्स या 4 आवर्स ऑप्शनल्स पे लगाएं, डिपेंडिंग अगेन ऑफ योर स्टेटस। हो सकता है आपने ऑप्शनल खत्म कर लिया हो
हो सकता है आप ऑप्शनल ऑलरेडी कर रहे हो और काफ़ी आपका एडवांस स्टेज पहुंच गया हो, वट एवर इट इज़, जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है, आप दिसंबर एंड तक 60 to 70% ऑप्शनल आपको जरूर कवरेज करनी पड़ेगी, सो दैट फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड यू डोंट हैव एनी बर्डन ऑफ ऑप्शनल, आपके दिमाग में कोई बर्डन नहीं है और आप पूरा फ्री हो फॉर जनरल स्टडीज ना। एंड इट कैन बी वेरी गुड अटेम्प्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अटेम्प्ट दे सकते हो। यू हैव टू स्टे फोकस्ड एंड यू हैव टू क्लियरली ले डाउन योर स्टडी मटेरियल, यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन प्रॉपरली, डेली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, मंथली प्लानिंग हैज़ टू बी डन, है ना। और डेली रिवीजन मस्ट, जो आपने पीछे पढ़ चुके हो उसकी रिवीजन करनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या कई बार गलती करते हैं इन द फ्लो ऑफ प्रिपरेशन, अभी इकॉनमी कर ली, ठीक है, अगला सेक्शन स्टार्ट हो गया, पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया तो इकॉनमी छोड़ दी। ऐसा नहीं हो सकता यूपीएससी में। एंड आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग इन प्री ओनली बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि दे वर नॉट एबल टू मैनेज द रिविजन वेल। तो आप पॉलिटी अगर नेक्स्ट सेक्शन पढ़ रहे हो तो इकॉनमी को 1 घंटा आधा घंटा लगाना ही लगाना है, ये पत्थर पे लकीर है। और जैसे पॉलिटी खत्म होती है अगला हिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो इकॉनमी और पॉलिटी दोनों जो सेक्शन आपके हो चुके हैं उनको घंटा 1.5 घंटा लगाना ही लगाना है डेली। जो आपने रजिस्टर बनाया है, नोट्स बनाया है, उसको रिवाइज करना है, याद करना है, तभी याद रहती हैं चीज़ें। नहीं तो अच्छे अच्छे आते आते अच्छे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं पेपर में। ये काम हमने नहीं करना है। तो रिवीजन इज मस्ट, दिस इज द की, डेली रिवीजन इज मस्ट। वहां गेम बस वही है, आपने इस बार का पेपर भी देखा 100 क्वेश्चंस हैं, बस बात वो गेम है वही 50 to 55 क्वेश्चंस की है जो अटेम्प्टेबल है। 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो 35 से 40 क्वेश्चन जो आसान थे, जो कर सकते हो, उसमें गलत नहीं करनी है। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपकी नॉलेज के बेस पे एलिमिनेशन से हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कोई किसी को आते ही नहीं, उसमें तुक्के मार के फायदा नहीं। अल्टीमेटली ये कि ये गेम इतनी की है, ये ऐसा नहीं है कि इस बार पेपर मुश्किल था, हर बार ही ऐसी कंपल्शंस होती हैं, एवरी टाइम दिस हैपन्स। सो यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन वेल, अपना सिस्टम बनाना है आपको एंड अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अब देखो सेकंड इसका एक एलिमेंट है कि अगर 2022 में अगर आप दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो तो बड़ा ही क्लियर है कि आपका जीएस प्रीकम मेंस का सिलेबस जो पूरा सिलेबस है दैट मस्ट बी कवर्ड बिफोर अगस्त 2021। मतलब अभी आपके पास 10 महीने हैं, 10 महीने के अंदर पूरा जीएस का प्रीकम मेंस का सिलेबस आपका कवर होना चाहिए। और जो एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस पहले चलती रहेगी, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है, जो फॉर्मल टेस्ट सीरीज आपने देनी है, वो सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सितंबर 2021 से स्टार्ट हो जानी चाहिए, है ना। तो ये दिस इज मस्ट, अगस्त 2021 आपने अपना कट ऑफ रखना है, सितंबर 2021 रखना है। और रिगार्डिंग ऑप्शनल आपका अप्रैल 2021 तक ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। स्टिल यू हैव 6 मंथ्स टाइम। तो 3 ये आपको डेट्स याद रखनी है अपनी। अगस्त के अंदर जीएस खत्म हो जानी चाहिए मेरी, सितंबर से मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देनी है, अप्रैल तक मेरा ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द रेसिपी ऑफ द सक्सेस। ये आपकी क्लियर कट रेसिपी है सक्सेस की, अगर आप 2022 में दे रहे हैं, अगर आप 2022 में दे रहे हैं तो मतलब ये बहुत सिंपल है, कोई बड़ी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, लेक्चर दूंगा आपको कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है। अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया ऑप्शनल तो ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है ना, कैसे आपको, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ साथ कैसे तैयारी करनी है। सो हाउ मेनी ऑफ यू जो अभी लगा रहे हैं क्लास, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिलेक्टेड द ऑप्शनल? ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है? अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है तो काइंडली पोस्ट करो कि आपने कौन सा ऑप्शन रखा है, फटाफट। पोस्ट करो अपना ऑप्शनल कि क्या ऑप्शनल आपने रखा है। वेरी गुड। फिजिक्स सारे पोस्ट करो अपना अपना ऑप्शनल। अगर नहीं डिसाइड किया हो तो नॉट डिसाइडेड लिखो। इफ यू हैव नॉट डिसाइडेड राइट डाउन नॉट डिसाइडेड।
तो ऑप्शनल का डिसीजन होना बहुत जरूरी है इसके अंदर कि व्हाट ऑप्शनल यू हैव डिसाइडेड, है ना। और सेकंड डिसीजन आपका ये जरूर होना जरूरी है कि आपने अटेम्प्ट 2021 का देना है, 22 का देना है। प्लानिंग अकॉर्डिंगली आपकी 21 या 22 के हिसाब से बनेगी, 21 का 22 के हिसाब से बनेगी। तो अल्टीमेटली मतलब एक फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस वक्त कि शुड आई गिव इन 2021, क्या मुझे 2021 का पेपर देना चाहिए, कि क्या मुझे 2021 का पेपर देना चाहिए, है ना। ये देखिए, ये डिसीजन कोई दूसरा नहीं लेगा आपके लिए, आपको खुद कैपेबल होना है, अपने अंदर कन्विक्शन जनरेट करनी है कि वेदर एम आई रेडी फॉर गिविंग दिस एग्जाम और नॉट। 7 महीने हैं विच इज़ क्वाइट इनफ, ऐसा नहीं है कि कम है पेपर में। दिमाग से करोगे तो ज़्यादा नहीं है। अगर आपने इस साल का पेपर भी देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देखो कि यार प्रीलिम में कितना पढ़ना ज़रूरी है और कितना पढ़ के फ़ायदा होगा और किस तरह का माइंडसेट चाहिए, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इस आज की डेट में। क्योंकि जब आप 100 क्वेश्चनों को टारगेट कर रहे हो, आप सिर्फ अब 100 क्वेश्चंस में से आप जब देख रहे हो कि 25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं यार कि अगर मैं 4 साल भी तैयारी कर लूँ, 5 साल भी कर लूँ, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तब भी वहीं की वहीं बात है। अब इस साल के अटेम्प्ट में भी देखो, हमारे पास बच्चे हैं जो 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से भी कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते उनके लिए बिल्कुल ही नए हैं, वो हर साल ही नए होते हैं। अब बात वही 70-75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की रह गई। अब 70-75 क्वेश्चन के अंदर वही 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो, बाकी 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर आप एलिमिनेशन से, एक रीजनेबल आपको एलिमिनेशन से आप अटेम्प्ट कर रहे हो। यही चल रहा है हर जगह पे। तो अब 7 महीने इस पर्पज़ के लिए बहुत है अगर आप स्ट्रेटेजिकली चलो। अगर आप हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा डीप में करने लग जाओ तो डेफिनेटली फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। वो तैयारी अच्छी होगी, नो डाउट, बट लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू मोटिवेट यू कि अगर 7 महीने हमारे पास हैं एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन द एग्जाम, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको करना क्या है, बस कि आपको ये देखना कि मेरा आज प्रिपरेशन लेवल क्या है। आप अगर ये कहो कि आज मैं तैयारी शुरू कर रहा हूँ जी, अभी एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, बट अगेन देन आपको समझना है कि आप अभी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हो एंड यू हैव 7 मंथ्स टाइम, तो आपको क्या करना है। फिर आप एक वाइड तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ी, फिक्स, ये नोट्स पढ़े, ये लेक्चर सुने, काम खत्म। आपको फेथ रखना पड़ेगा कि ठीक है इतना पढ़ के मेरा हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो ठीक है। लेकिन इफ़ यू थिंक कि मैं 7 महीने में आई कैन रीड डी बासु ऑल्सो, लक्ष्मीकांत ऑल्सो, मैं बिपिन चंद्रा भी पढ़ लूँगा, मैं रमेश सिंह भी पढ़ लूँगा, मैं फलानी इकॉनमी की बुक पढ़ लूँगा, मैं वो पढ़ लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको समझना है कि अगर मैं वो पढ़ूंगा तो मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, तो प्री नहीं होगा। तो 7 मंथ्स टाइम एक है, तो आपको देखना है कि मेरी आज प्रिपरेशन क्या है। सेकेंडली आपको देखना है कि मेरी कोई एंगेजमेंट तो नहीं है। भाई आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसके साथ क्या आप उसको जेल कर सकते हो, कहाँ कहाँ आपका टाइम जाएगा। बड़ा ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लेना पड़ता है ये। कई बार हम ना इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लेते हैं, देन वी लेटर ऑन रिपेंट कि यार ये डिसीजन क्यों ले लिया था, मेरा तो ये था, इससे तो टाइम मिलना ही नहीं था, है ना। तो अगर अदर एंगेजमेंट देखनी है आपको, और फिर सिटिंग कैपेसिटी आपकी कितनी है कि आपके पास 10-12 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी है। अगर 12 घंटे की पढ़ने की कैपेसिटी आपकी डेली की है, 2021 में कोई भी दे सकता है 7 महीने में, इतना मैं आपको बता दूं। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेटजी इन माइंड, क्लियर कट फोकस है, 12 घंटे की तैयारी 7 महीने बहुत है यूपीएससी के लिए। अगर होना होगा इतनी देर में आराम से हो जाता है तैयारी में, तो कोई कॉन्फिडेंस लूज करने की बात नहीं है बिल्कुल। बहुत सारे हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं कि हाँ हो जाता है, लेकिन बात फिर है कि फोकस बहुत क्लियर चाहिए, यू कांट बी वेग। आप प्रोफेशनल तैयारी जिसे कहते हैं ना, वो होनी चाहिए कि इतना पढ़ना है, पढ़ के कर दिया खत्म, पढ़ दिया, है ना। आपका प्रेजेंट ऑप्शन स्टेटस क्या है, अभी आपका ऑप्शनल का स्टेटस क्या है। आपका जो मैंने ऑप्शन बिल्कुल नहीं तैयार किया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 महीने हैं आपके पास, 2 महीने में कम से कम 50% या 55%, 60% सिलेबस तो हो ही सकता है। बट यू हैव टू डिसाइड, बट यू कैन नॉट कीप ऑन लिंगरिंग दी डिसीजन कि कर लेते हैं और सोचें 2021 में दे भी देंगे। फिर अब 2-3 बच्चे मेरे पास आए, मिलने आए, तो अल्टीमेटली मैंने देखा कि 2021 में उन्होंने देना है। मैंने पूछा ऑप्शनल क्या है, बता दिया ऑप्शनल ये है, लेकिन तैयार किया ही नहीं बिल्कुल। कहते सर ऐसे टाइम निकल गया, पता नहीं लगा 2 महीने, ऑप्शनल को हाथ भी नहीं लगाया और टारगेट बना के बैठे हैं 2021।
फिर मैंने उनको पंप किया कि नहीं करो 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 ऑप्शन, अगर 21 में देना है तो दो। लेकिन ये सोच के कि मैंने ऑप्शन तैयार नहीं किया, 21 का अटेम्प्ट छोड़ दूंगा मैं, नहीं, ऐसा नहीं भाई, तैयारी तो मैं करूंगा ही, 21 का टारगेट रखूंगा। अगर इन केस नहीं तैयारी हो पाई, चलो मान लिया 1 मिनट के लिए, देन 22 में देना ही है, ये तैयारी कौन सा वेस्ट चली जानी है। सी दिस इज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड यू शुड हैव। ये कौन सा तैयारी वेस्ट चली जानी है, ये भी तो तैयारी काम ही आनी है ना। अभी आपने ऑप्शन कर लिया धक्के से, अगर हो गया कवर तो बहुत अच्छा, नहीं हो गया तो ठीक है, अगली बार दे देंगे 2022 में। और यूपीएससी इज वर्थ अटेम्प्ट गिविंग मोर वन अटेम्प्ट, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चीज़ है जो आपको स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है। तो एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क, या कोई और ऐसा एरिया है जो आपको यू नीड टू एड्रेस इट, तो मैं उस पर लेक्चर आपको दूंगा, लाइव आऊँगा। आप बताते रहा करो, इन केस आपको कोई तैयारी के अंदर कोई भी हिंड्रेंस लगती हो, यू नीड माई मेंटरिंग, यू नीड माई स्पेशलाइज्ड इनपुट फॉर एनी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, जस्ट कीप इन टच विद मी। है ना। ठीक है, सो दिस वॉज टूडेज लेक्चर। तो वेंसडे को फिर मिलेंगे फॉर नेक्स्ट थिंग, एंड इफ यू हैव समथिंग इन माइंड जस्ट टेल मी। तो लेकिन आपने 21 के हिसाब से आप तैयार लो। आप रिगार्डिंग दिस प्रिपरेशन स्टेटस, अगर आपको कोई भी आपको स्ट्रेटजी में लगे तो 9501114021 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फॉर द पर्पज ऑफ टेक्सटिंग। तो टेक्स्ट आप इस पर करोगे, जरूरत पड़ेगी बात करने की तब देखेंगे, आगे करेंगे। 23 का मैं आऊँगा नवीन, आई विल कम, जैसे जो मैं ग्रेजुएशन के साथ की तैयारी की बात करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो 23, 24, ठीक है ना। क्योंकि आपने 2 साल का टाइम फ्रेमवर्क आपके पास है, तो अब क्या करना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ कैसे करनी चाहिए। अदरवाइज फंडामेंटल सेम ही रहते हैं कि आपको मतलब 1 साल पहले तक अपना सिलेबस खत्म करना है, फिर 1 साल की टेस्टिंग चाहिए हमारे को बस, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन ऑन वेडनेसडे। कोई भी और आपको लगे एस्पेक्ट ऑफ प्रिपरेशन कि इसकी इनपुट चाहिए हमारे को, मेंस आंसर राइटिंग के मेरे लेक्चर चल ही रहे हैं, वो आप लगा ही रहे हो, नंबर 1। नंबर 2 आप जीएस के सेक्शन लगा रहे हो। नंबर 3 आपको नोट्स अवेलेबल हैं। नंबर 4 आपको अब ये मेंटरिंग चल रही है, तो आपको पूरे ज़ील के साथ तैयारी करनी है, मतलब अपना दिन वेस्ट नहीं करना है, हर दिन की असेसमेंट करनी है कि आज मैंने क्या किया, एंड सक्सेस इज़ योर्स। चाहे आपने 21 में देना है, 22 में देना है, 23 में देना है, यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ। जो हैबिट अपने की आप कर लोगे, हैबिट डाल लोगे, वैसा ही चलेगा काम आपका, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।